First up, viewers, the focus remains on Padma Awards. This year's honor will be to a powerful list of unsung heroes, men and women whose work has quietly transformed lives, communities, and traditions across the country. They're not celebrities, they're not always in the spotlight, but they are the strength behind India's progress. These awardees come from different domains of life, different walks of life, each of them contributing in their own unique way to the society and the nation. Domains such as tribal heritage, disability rights, rural healthcare, rural education, tribal art are in focus. Their journeys reflect perseverance, commitment, and a deep sense of purpose. Not all of them are popular, viewers, but every one of them is powerful in their own forte. These Padma awardees remind us that greatness does not always make headlines. Often it works silently behind the scenes, patiently and selflessly shaping the nation from the ground up. As India salutes Pokila Lekthepi, H.D. Sushilamma, Charan Hembram, Chiranji Lal Yadav, Anke Gowda, Biklia Ladkya Dhinda, Armeda Fernandes, Bhagwan Das Raikwar, Brijlal Bhatt, Budri Tati, Dharmkal Chunilal Pandya, Punyamurthy Nateshan, and many others, the nation pauses to recognize the real heroes among us, and their stories inspire. Their work empowers, and their legacy will continue to guide generations to come. Today, the Padma Awards stand as a tribute not just to their achievement, but to purpose, perseverance, and the power of quiet impact. Social workers and unsung heroes from different walks of life will be conferred the Padma Award this evening, and we have accessed the list. Armeda Fernandes from Maharashtra, Bhagwan Das Raikar from Madhya Pradesh, Biklia Ladakya Dhinda from Maharashtra, Brijlal Bhatt from Jammu and Kashmir. We have Charan Hembram from Odisha, Chiranji Lal Yadav from Uttar Pradesh. Several individuals, extraordinary individuals, and their extraordinary contributions will be recognized this evening. And some of them include Gafruddin Mewati from Rajasthan, Inderjeet Singh Sandhu, Kailash Chandra Pant from Madhya Pradesh, Khemraj Sundriyal from Haryana, Kolakiai Devki Ammaji, then Mahendra Kumar Misra from Odisha, Mohan Nagar from Madhya Pradesh, Naresh Chandra Dev Verma from Tripura. People from across the country, unsung heroes from across the country will be awarded Padma Shri this evening by the President. It's the highest civilian honor to India's unsung heroes. While most of them may not be featuring in the headlines on a daily basis, but behind the scenes, they play a very, very crucial role in uplifting the nation, uplifting communities that really matter, and their contributions have now been recognized because their names have made it to the list of Padma Shri awardees. We have Anand Pandey also joining us on this broadcast. Anand ji, we have accessed the list of पद्मा अवार्डीज और हमारे पास नाम भी है किन किन को पद्मा अवार्ड मिलने वाला है, इनका कंट्रीब्यूशंस क्या है? जी बिल्कुल, जो 45 नाम आज पहली सूची आई है जो पद्माश्री अवार्डीज हैं, इसमें ये बेसिकली सब जो है अनसंग हीरोज है, यानी कि ये साधारण लोग हैं, यानी कि ये सिंपल लोग हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते देश के, लेकिन जो ये काम करते हैं वो सिंपल नहीं है, वो अनसंग नहीं है, और ये लोग अपने काम के जरिए देश को, समाज को, प्रकृति को, शिक्षा को, एजुकेशन को, लिटरेचर को और ये लोग बढ़िया बनाते हैं, उसको मजबूत करते हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को एक एक करके इन लोगों की पहचान की गई है और फिर सरकार जो है उनको सम्मानित करने का सरकार ने फैसला किया। ये जो 45 नाम जो पहली सूची आई है पद्मश्री अवार्डीज़ की, इसमें से ज़्यादातर लोगों को यहाँ दिल्ली में कोई नहीं जानता होगा। ये लोग ज़्यादातर अपने काम पे फोकस करते हैं, ये लोग सिंपल लोग हैं, लेकिन ये लोग असाधारण काम करते हैं, यानी कि इनके काम बहुत बड़े हैं। ये आदमी भले सिंपल है, अनसंग है, और यही वजह है कि सरकार ने जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से सरकार ने एक फैसला किया कि पहले जो होता था दिल्ली के चक्कर लगाए जाते थे, नेताओं के चक्कर लगाए जाते थे, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के चक्कर लगाए जाते थे पद्मश्री पुरस्कार के नॉमिनेशन के लिए, लेकिन सरकार जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके बाद ये सिस्टम को बंद किया गया। हालांकि अभी भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण अवार्ड्स के लिए लोगों से नॉमिनेशन मंगाए जाते हैं, लेकिन सरकार का फोकस ये होता है कि ऐसे
लोगों को ये अवार्ड दिया जाए जो वाकई समाज के लिए, देश के लिए अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, समाज को ऊंचा उठा रहे हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच के बच्चों के लिए पुस्तकालय खोला, यानी कि लाइब्रेरी बनाई है। कई ऐसे लोग हैं उन्होंने इन्वायरमेंट को मजबूत करने के लिए, उसको और हरा भरा करने के लिए काम किए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में नए नए खोज किए। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, लेकिन इनका अचीवमेंट है, इनका काम है। और ऐसे 45 लोगों को सरकार ने इस साल का पद्मा श्री जो अवार्ड देने का फैसला किया है। अभी इसके बाद पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण की भी सूची आएगी, लेकिन पद्मा श्री अवार्ड जो है वो खास इस मायने में भी है क्योंकि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप ऐसे लोगों को नाम सुनेंगे जिनको पद्मा श्री अवार्ड दिया जाता है, जिनको हो सकता है कि उनको अपने जिले के बाहर यानी कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर लोग उनको नहीं जानते हैं, लेकिन वो काम ऐसा करते हैं जिससे आज समाज जो है, समाज और देश जो है आगे बढ़ रहा है। ऐसे इसमें उत्तराखंड के लोग हैं, तमिलनाडु के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के, यानी कि अमूमन ऐसा होता था कि पहले जो अवार्ड मिलते थे वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में मिलते थे या फिर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लोगों को मिलते थे सिफारिश पर। लेकिन अब जो सूची आती है और जो आज की सूची है उसमें आप देखिए, उसमें उत्तराखंड से लेके केरल तक के अवार्डीज है, उसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान तक के अवार्डीज है। और ऐसे अवार्डीज है जो देखने में आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन उनका काम जो है, उनका जो अचीवमेंट है, उनका जो देश के लिए योगदान है वो बहुत बड़ा है। आनंद पांडे जी, ये जो लिस्ट है इसमें ये हमको पता चल रहा है कि जो सदियों से रीजनल और सोशल गैप्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब बैरियर्स को तोड़ चुका है। जी बिल्कुल, आप इस सूची को देखिए कि इसमें महिला है, इसमें बच्चे हैं, दलित हैं, इसमें दिव्यांगजन है, आदिवासी हैं, यानी कि ये जो सूची है हर तरह के बैरियर को, जैसे कि आपने बोला, सही मायने में तोड़ी है। इसने न सिर्फ क्लास बैरियर को तोड़ा है बल्कि जो स्टेट्स का बैरियर है उसको भी तोड़ा है और जो रीजन का जो बैरियर है उसको भी तोड़ा है। इसमें हर एक सेक्टर्स के लोग हैं, हर एक स्टेट के लोग हैं और साथ ही साथ जो सेक्टर्स, जिस सेक्टर से वेराइड सेक्टर्स में जो लोगों का योगदान है, जो लोग काम करते हैं, उनको इसमें जगह दी गई है। और इसीलिए इनको अनसंग हीरोज़ कहा है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपना काम तो करते हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादातर लोग, खासतौर के दिल्ली में बैठे लोग या जो बड़े शहर है या बड़े राज्य, वहाँ के लोग इनके बारे में नहीं जानते। लेकिन वो काम इतना बड़ा करते हैं, उनका योगदान जो है समाज में, शिक्षा में, साहित्य में और साथ ही साथ चिकित्सा में इतना बड़ा है, समाज सेवा में इतना बड़ा है कि उसको आपको पुरस्कृत करना, आपको उनको रिकग्निशन देना जरूरी है। और यही काम किया जाता है। सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी जो है उनके पास नाम, कुछ तो नॉमिनेशन आते हैं और कुछ जो है सरकारी कमेटी के लोग खुद पता करते हैं कि किस स्टेट में कौन से लोग हैं। अमूमन क्या होता था कि पहले आदिवासी सेक्टर्स के लोग होते थे या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग होते थे, उनको ज़्यादा ऐसी सूचियों में अवार्ड नहीं मिलते थे क्योंकि उनके बारे में ज़्यादातर दिल्ली में जानकारी पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन अब जो है उसको डाइवर्सिफाई किया गया है। अब जो है जो अप्रोच है उसको चेंज किया गया है। अब दिल्ली में आपको नाम भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली जो है अब हर स्टेट में जाती है, हर सेक्टर्स में जाती है, वहाँ जाके पता करती है कि कौन है जो यहाँ बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज के लिए हो, देश के लिए हो, साहित्य में हो, शिक्षा में हो, लिटरेचर में हो। और ऐसे में ऐसे लोगों को पहचान की जाती है। उसका जो कमेटी है वह ऐसे लोगों के नाम पर अपनी फाइनल मुहर लगाती है। तो जो पद्मश्री अवार्डीज की 45 लोगों की सूची आई, अब देखेंगे अलग अलग राज्यों के ये लोग हैं, ये अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग क्लास के लोग हैं और साथ ही साथ इसमें आदिवासी हैं, इसमें हैंडीकैप्ड हैं, इसमें दिव्यांग हैं, इसमें महिला हैं, दलित हैं, इसमें हर सेक्टर्स के लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं जिन्होंने इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आनंद जी, जैसे आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही अप्रोच है, सबका साथ वाली अप्रोच, एंड दिस इज क्लियरली विजिबल इन द लिस्ट ऑफ अवार्डीज दैट वी आर सीइंग। बट आनंद पांडे जी, ये जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस है, इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो पहले नहीं मिल रहा था। कितना महत्वपूर्ण मोमेंट है ये? जी बिल्कुल, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, हम मार्जिनलाइज इसलिए कह रहे हैं उनको क्योंकि उनके बारे में लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है। आप अलग अलग इनके सेक्टर्स देखेंगे तो इसमें ऐसे लोग हैं जिनको ये जो अभी काम कर रहे हैं, जिनके उनको अवार्ड दिया गया, उसको करने में उनको कई तरह की चुनौतियाँ आई, कई तरह की चैलेंजेस उनके सामने आए। पर्सनल चैलेंजेस थे उनके सामने, सोसाइटी के चैलेंजेस थे उनके सामने, ब्यूरोक्रेसी के चैलेंजेस भी थे। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए वो हारे नहीं, वो थके नहीं, बल्कि उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाते रहे, अपने काम को जारी रखा। और यही वजह है कि इन लोगों को आज अवार्ड देने का फैसला किया है। लेकिन इन 45 लोगों के जरिए देश के करोड़ों लोगों में एक मोटिवेशन जाएगा कि अगर हम भी बिना किसी
इच्छा के या हम बिना किसी अवार्ड के लालच के या सेल्फिश ना होकर सेल्फलेस तरीके से अगर हम समाज के लिए कुछ काम करते हैं तो हमको लोग देखेंगे। पहले ऐसा होता था कि आप ऐसा काम करिए कि लोग आपको देखें, सरकार के लोग आपको देखें, आपका अवार्ड मिले। लेकिन अब जो नया अप्रोच है ऐसे लोगों को अवार्ड देने का, तो ये लोगों को इंस्पायर भी करता है कि अगर आप काम करते हैं, आप सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो आपको पहचान की ज़रूरत नहीं है, खुद आपको पहचान लिया जाएगा, आपके कंट्रीब्यूशन को रिकग्निशन मिलेगा, सीधा दिल्ली तक मिलेगा, प्रधानमंत्री आपको रिकग्नाइज करेंगे, राष्ट्रपति आपको पद्मा अवार्ड देंगी। तो ऐसे में लोगों को भी इंस्पायर भी हो, ऐसी ये जो लिस्ट लोगों को इंस्पायर भी करती है कि आप अपना काम करते रहिए, और आप अगर काम करते हैं वाकई में आपका काम जो है कसौटी पर खरा उतरता है, तो आपको किसी पहचान की दरकार नहीं है, आपको पहचान भी मिलेगी, आपको कंट्रीब्यूशन के लिए आपको देश में की तरफ से देश के जो राष्ट्रपति हैं वो आपको सम्मानित भी करेंगे। आनंद पांडे जी, ये भी ये लिस्ट बता रहा है कि इस गवर्नमेंट का और इस कमिटीज जो बने हैं इनका अप्रोच टुवर्ड सक्सेस, आइडेंटिफाइंग सक्सेस, द पैरामीटर्स, वो सब बदल चुके हैं अभी। जी बिल्कुल, और उसमें जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें कई ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जो उन सेक्टर्स में या ऐसी चीज़ों के लिए काम करते हैं जो अब खत्म हो रहे हैं, यानी कि जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं या इंडेंजर्ड हैं, यानी कि अब कुछ समय बाद आपको नज़र नहीं आएंगे। वो भाषा है, वो लिपि है, वो अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उन पर आपने काम अभी नहीं किया तो आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, भले वो आर्ट हो या आपकी लिपि हो या फिर कोई भाषा हो, लैंग्वेज हो, तो ऐसे सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं जो कि आज के 5-10 साल बाद उन पर अगर काम नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो हिस्ट्री की बातें हो जाए और आप उसको कोई जानने वाला भी ना मिले। तो आप लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसे लैंग्वेजेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्राचीन है, ऐसी भाषाओं को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी लिपियों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे आर्ट्स हैं जो बुनाई की बात अगर हम करें तो बुनाई ऐसी चीज़ है कि जो बुनाई भी जो आर्ट हो, एक आर्ट है, उसको भी अब लुप्त होती जा रही है, लेकिन उसको भी रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे इसमें जगह दी गई है इस लिस्ट में। उसकी कोशिश यही है कि आप वाकई में बिना सिफारिश के, वाकई में आप समाज के लिए, देश के लिए, अलग अलग तबके के लिए आप अपना काम कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको रिकग्निशन दी जाएगी। और ऐसे ही लोगों को अगर आप अलग अलग सेक्टर से लाकर, अलग अलग राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट से लेके आप गुजरात, राजस्थान और केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह से ऐसे लोगों को आप अवार्ड देते हैं तो लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिलता है। ऐसे लोगों को जो कि वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि अब कब तक हम काम करें, हमको कोई पहचान नहीं मिल रही, हमको कोई देख नहीं रहा। तो ये एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि अगर आप काम करते हैं, वाकई ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं, ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए आप काम करें जो कि वाकई देश समाज को आगे ले जा रही है, या फिर जो हमारी जो हेरिटेज है उसको अगर आप बचा रहे हैं, उसको संजो कर रखने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको अब कोई पहचान की दरकार नहीं, आपको पहचान भी मिलेगी, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। और आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, देश के किसी भी कोने में, किसी आप बहुत ही रिमोट एरिया में भी काम कर रहे हैं, अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो आपको लोग देख रहे हैं, सरकार आपको देख रही है और आपको इसके लिए रिकग्निशन भी मिलेगी और आपकी कंट्रीब्यूशन को सराहा भी जाएगा। और आनंद जी, पहले जैसे परसेप्शन अभी नहीं है। पहले का परसेप्शन था कि जो ज़्यादा विजिबल थे, ज़्यादा काम करते हुए विजिबल थे, उनको अवार्ड्स दिया जाता था। बट अभी जो ज़्यादा इम्पैक्ट बना रहे, जो भी कोने में है इस देश के, उन जैसे लोगों को आजकल अवार्ड्स मिल रहे हैं। ये से जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा कि पहले जो है कहा जाता था कि जो दिल्ली दरबार यानी कि जो दिल्ली के चक्कर लगाएगा उसको ये पद्मा अवार्ड दिए जाएंगे, और लोग करते भी थे। लोग तमाम सिफारिश लगवाते थे, वो केंद्रीय मंत्री से सिफारिश लगवाते थे, नेताओं से सिफारिश लगवाते थे, और कोशिश ये करते थे कैसे भी करके हमारा नाम जो है पद्मा की सूची में आ जाए। लेकिन अब जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इस अप्रोच को बदला गया और कोशिश ये की गई कि ऐसे लोग जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद काम कर रहे हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं, उनको किसी भी पहचान की या उनको किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं चाहिए, उनको बस अपने काम से प्यार है, उनको वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और चुपचाप कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करने का सरकार ने एक सिस्टम शुरू किया, एक कमेटी बनाकर, और ये लोग ऐसे लोगों को चुना जाता है कि जो आम आदमी के डेली का जो लाइफ है उसमें कुछ इम्पैक्ट लाए।
तो ऐसे लोगों की एक सूची बनाई जाती है, अलग अलग राज्यों में जाकर नॉमिनेशंस तो मंगाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में जाया जाता है और अलग अलग सेक्टर्स में देखा जाता है कि एजुकेशन में, लिटरेचर में, मेडिसिन में, समाज That's right. सेवा बहुत में, सारे ऐसे स्वच्छता में, फील्ड से या फिर अनसंग ऐसे हीरोज चीजें, को AI रिकॉग्नाइज impact किया हुआ, गया ऐसे- है ऐसे- और उनके कंट्रीब्यूशंस के दौरान उनको अभी पद्मा अवार्ड के लिस्ट में भी मेंशन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।